Bismillahirrahmanirrahim. Electromagnetic induction. Hans Christian Ørsted and Ampere discovered that due to electric current, magnetic field can be produced. And after that, other scientist Michael Faraday proved it reverse, that this process may be reverse also. According to Michael Faraday, its reverse process can be possible. By magnetic field, electric current can be produced also. By the change in the magnetic field, electric current can also be produced. And third scientist Joseph Henry proposed it, showed it that due to changing the magnetic field, electric current can be produced. Now we shall discuss Faraday's experiment for the process of the production of the electricity. See these two diagrams. This surface is perpendicular. Now all lines of force can pass through it. So magnetic lines of force can be produced. Now this surface is parallel to the magnetic lines of force. No lines of force can pass through it. All lines of force are parallel to it. Now in the experiment we can clear it that this is the coil which is near to the bar magnet. All lines of force can pass through it. This coil is away from the bar magnet. Few lines of force can pass through it. If coil is near the bar magnet, all lines of force can pass through it. So we may say that by passing the lines of force, current can be produced. Now हांस क्रिश्चियन और ऑर्स्टेड और एम्पियर ने दरियाफ्त किया था कि इलेक्ट्रिक करंट के गुजरने से उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। माइकल फैराडे ने इसके उलट बताया था, मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से करंट पैदा हो जाता है। अब एक और साइंसदान जोसेफ हेनरी ने भी बताया था, मैग्नेटिक फील्ड को तब्दील करने से करंट पैदा किया जा सकता है। अब इसको साबित करने के लिए दो तजर्बे ये दिए गए हैं। एक ये है, इसमें ये सतह जो मैग्नेटिक फील्ड की अमूदन है, सारी लाइन्स ऑफ फोर्स जिसमें गुजर रही हैं, इसमें ये सतह जो है पैरेलल है, लाइन्स ऑफ फोर्स उसके ऊपर से गुजर रही हैं। अब दो तजर्बे ये दिखाए गए। ये तजर्बा ये शो कर रहा है कि इसमें जो कोयल जो है मैग्नेट से दूर है, चंद लाइन्स ऑफ फोर्स में गुजरेगी। अब इस कोयल को मैग्नेट के करीब लाते हैं तो सारी लाइन्स ऑफ फोर्स इसमें गुजर जाएगी। इन लाइन्स ऑफ फोर्स के गुजरने से, तब्दील होने की वजह से करंट क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। नाउ विद द एक्सपेरिमेंट, टेक अ coil which is rectangular in shape and it is connected with the sensitive galvanometer. Its one end is between the horseshoe magnet. When we move it toward the upward direction and it toward the downward direction. Now this coil is moving toward the downward direction. Its needle move toward the right hand side. Due to the motion, EMF will be induced. Due to the induction of the EMF, current will be produced in the galvanometer. If this coil is parallel, no current will be produced, no EMF will be induced. Now with the experiment it will be clear that take a rectangular coil and it is connected with the sensitive galvanometer. Move this coil in the sensitive galvanometer to the downward direction. Due to the moving downward direction, needle move toward the right side. In the second experiment, needle is moving to the upward direction. Galvanometer's needle move toward the right side. Due to the movement of the coil, current will be produced. This is the Faraday's law. It will be cleared the definition of the electromagnetic induction. Due to the passing the magnetic lines of force, EMF will be produced. This EMF, due to the magnetic field, current will be produced and the magnetic lines of force will be produced. This magnetic lines of force is directly proportional to the induced current. इस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की वजह से करंट पैदा हो जाता है। उस करंट को क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं। इस मसर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि सर्किट में बहने वाले लाइन्स ऑफ फोर्स की वजह से करंट पैदा हो जाता है और ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की तब्दीली की वजह से करंट इंड्यूस हो जाता है। इस मदर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसके ये दो तजर्बे दिखाए गए हैं। एक ये तजर्बा ये है कि कोयल ऊपर की तरफ हरकत कर रही है, इसमें कोयल क्या कर नीचे की तरफ मूव कर रही है। अब जब कोयल क्या करती है, ऊपर की तरफ हरकत करती है, कोयल को ऊपर की तरफ हरकत करती है तो गलवानोमीटर इस तरफ शो करता है करंट को। जब नीचे की तरफ हरकत करती है, गलवानोमीटर अपना कोयल को नीचे की तरफ हरकत दी जा रही है तो गलवानोमीटर राइट साइड को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है।
इसको हम ये कह सकते हैं कि एक हसास कोयल दें। कोयल क्या है, किस शक्ल में, रेक्टेंगुलर शक्ल में है, इसको गलवानोमीटर के साथ जोड़ दिया गया है। अब इस कोयल को नीचे की तरफ मूव किया जा रहा है, नीचे की तरफ हरकत दी जा रही है, तो गलवानोमीटर की सुई क्या करेगी, दाएं तरफ हरकत करेगी। इस कोयल को ऊपर की तरफ हरकत दी जा रही है, तो गलवानोमीटर की सुई क्या करेगी, बाएं तरफ हरकत करेगी। इस तरह इस कोयल की हरकत देने से लाइंस ऑफ फोर्स पैदा हो जाती हैं। इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को तब्दील करके करंट को पैदा किया जा सकता है। इस मदर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब इसमें जो शॉर्ट सवाल बन रहे हैं, पहला शॉर्ट सवाल इसमें, मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत किसे कहते हैं? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, शिद्दत क्या होती है? When lines of force pass through the coil, on the पेज नंबर 131 पर इसका आंसर मौजूद है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, ये लाइंस ऑफ फोर्स व्हेन पास थ्रू इट, इफ इट इज नियर द coils, all lines of force pass through it, strength will be powerful. If this coil is away from the bar magnet, strength will be weak. सेकेंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या मुराद है? व्हाट इज मेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? पेज 147 पर इसका आंसर मौजूद है। 147 पर इसका आंसर मौजूद है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द बार मैग्नेट। दिस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, दिस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स due to magnetic lines of force, current will be produced. This is called the electromagnetic induction. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैदा होती हैं सर्किट में। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद को तब्दील करके करंट पैदा किया जा सकता है, इंड्यूस करंट पैदा किया जा सकता है। इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ड्यू टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स करंट विल बी प्रोड्यूस, इंड्यूस्ड करंट विल बी प्रोड्यूस। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा मज़र होता है जिसमें सर्किट में गुजरने वाले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से इंड्यूस करंट पैदा हो जाते हैं। इस मज़र को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये आज का टॉपिक था, इसको याद करना है। अल्लाह।